Good morning, student. This is part C, Unit 2, Food, Section A, The Luncheon by William Somerset. So today we will start with page number 35. My heart sank as they were horribly expensive. Madam wants to know if you had any of those great asparagus, I asked the waiter. I tried with all my might to will him to say no. A happy smile spread over his face as he said yes. He means waiter, okay? I am not in the least hungry, my guest sign. But if you insist, I don't mind having some great asparagus. I ordered then. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus, I said. Panic seized me. It was not a question how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. I could not bring myself to do that. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made a decision that I would put my hand in my pocket and, with a dramatic cry, say it had been stolen. Of course, it would be unfortunate if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would to be leave my watch and asked I would come back and pay later. Okay, the asparagus appeared. They were big, delicious, and appetizing. Okay, now the lady was enjoying the luncheon and chit-chat about art, literature, and music, while William was deep thinking about the amount of bill. Okay, the bill was above his anticipation, and when the bill of the luncheon came, she waved towards the waiter with an airy gesture and ordered for asparagus, most expensive item on the menu. Then विलियम्स हार्ट सैंक, मतलब जो ऑथर है उसका दिल बैठ जाता है. वाई? बिकॉज जो डिश थी वो हॉरिबली एक्सपेंसिव थी, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी, मोस्ट एक्सपेंसिव डिश. ओके, हिज माउथ वाटर्ड एंड येट ही हैड टू रिप्रेस हिज इमोशंस. ठीक है, उसको भी खाना था, उसको भी टेस्टी लग रहा था देख के जब एस्पेरेगस अपीयर होता है, बट उसको अपने बिल की चिंता थी, जो उसके पास लिमिटेड फ्रैंक्स थे. Now author was thinking in his mind about how he was going to pay the bill, or how could he pretend an act of his pickpocketing, because जो author है उसने एक आइडिया माइंड में बना लिया था कि अगर बिल ज़्यादा आता है अमाउंट, देन वो क्या करेगा, वो अपना हैंड अपने पॉकेट में डाल के एक ड्रामेटिक ड्रामा क्रिएट करेगा कि उसका जो पॉकेट है, उसका जो पर्स है, जो वो चोरी हो गया है वहीं पे. और अगर वो जो लेडी फ्रेंड है वो भी बिल अमाउंट पे नहीं कर पाती हो, देन वो अपनी वॉच होटल में रख देगा एंड देन नेक्स्ट मंथ वो आके बिल पे करेगा. ये आइडिया था ऑथर का, ये और उसने माइंड में अपने प्लान किया हुआ था. नाउ I watched the shameless woman thrust asparagus down her throat, and the smell of the melted butter hit my nose. At last she finished coffee. Coffee? I said. Yes, just an ice cream and coffee, she answered. मीन्स वो एस्पैरागस, वो जो हॉरिबली एक्सपेंसिव डिश थी, उसके खाने के बाद भी वो कॉफ़ी एंड आइसक्रीम के लिए रेडी है. I was past caring now, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. Why? Because अब ऑथर के माइंड में प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा उसको टेंशन नहीं है. आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड वीकली. ऑथर क्या पूछता है, क्या आप अभी भी भूखी हैं? इट मीन्स आपको अभी भी कुछ चाहिए. ओह नो, आई एम नॉट हंग्री. यू सी, आई डोंट ईट लंचन. I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for luncheon.
लेडी कहती है कि वो कभी भी लंच में कुछ नहीं लेती, वो मॉर्निंग में टी लेती है, डिनर करती है, वो दिन में लंच में कुछ नहीं लेती, इफ़ अगर खाती भी है तो एक डिश से ज़्यादा कभी नहीं खाती। ओके, नाउ देन अ टेरिबल थिंग हैपन। इसी इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही टेरिबल इंसिडेंट होता है। क्या होता है? While we were waiting for the coffee, the head waiter with a pleasant smile on his false face come up us bearing a large basket full of big peaches. Okay, वहाँ का एक हेड वेटर होता है, वो बास्केट में बहुत सारी पीचेस भर के एक फेक से स्माइल के साथ आता है और टेबल के पास आ जाता है। दे वर ब्यूटीफुल। किसकी बात हो रही है? पीचेस की बात हो रही है। जो बास्केट में वो बहुत ही सुंदर है। दे हैड द रिच टोन ऑफ इटैलिक कंट्री बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन। वो बता रहे हैं कि जो पीचेस है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत रिच टोन के, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और ये सीज़न पीचेस का नहीं है, ये सीज़न नहीं है। गॉड न्यू व्हाट दे कॉस्ट। इट मीन्स कि ये कितना ज़्यादा कॉस्टली होगा अगर ये इस सीज़न के पीचेस नहीं हैं। यू सी you have filled your stomach with a lot of meat by one miserable little chop and you can't eat any more। वो कहती है कि देखो अब तुमने कितना हैवी सा खा लिया है और अपना पेट कितना भर लिया है, बिकॉज उसने सिर्फ एक ही डिश खाई, ऑथर ने, मटन चॉप। फिर भी लेडी उसको एडवाइस करती है कि तुमने कितना सारा खाया, कितना हैवी खाया है और मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो। ओके, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शेल एन्जॉय अ पीचेस। वो कहती है कि देखो मैंने सिर्फ हल्का फुल्का स्नैक्स खाया है और वो कहती है कि अब मैं पीचेस को एंजॉय करूँगी। इट मीन्स कि वो इनडायरेक्टली कहती है कि अब मैं पीचेस खाऊंगी। ओके, नाउ द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। वो कहता है कि पीचेस के बाद वेटर बिल लेके आता है। बिल इतना होता है कि वो पे कर देता है और कुछ फ्रैंक्स बचते हैं जो वो वेटर को टिप दे देता है। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑफ द 3 francs आई लेफ्ट फॉर द वेटर। वो 80 फ्रैंक्स में से 3 francs एंड में बचते हैं जो वेटर उसको देख रहा होता तो वेटर को वो टिप दे देता है। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। देन ऑथर कहता है कि वो वॉक करके बाहर आता है रेस्टोरेंट के, वो देखता है कि उसके पास सामने पूरा का पूरा मंथ है, वो कैसे अपने एक्सपेंसेस बियर करेगा, उसके पॉकेट में एक भी पैसे नहीं है। फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शूक हैंड्स एंड नेवर ईट मोर देन 1 thing फॉर लंच। एंड देन वो लेडी क्या कहती है? वो कहती है कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, कभी भी लंच में एक से ज़्यादा कुछ भी मत खाओ। आई विल डू बेटर देन दैट आई आंसर्ड। ऑथर क्या कहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। वो कहता है कि मैं आपका एग्जाम्पल से भी बेटर चीज़ करूँगा, मैं आज रात डिनर में कुछ भी नहीं खाऊँगा। ह्यूमरिस्ट शी क्राइड हैप्पीली जंपिंग इनटू द कैब। वो लेडी खुश हो जाती है, स्माइल करते हुए अपनी कैब में बैठ जाती है। यू लास्ट यू आर क्वाइट ह्यूमरिस्ट बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। अब ऑथर क्या कहता है? एट लास्ट मुझे मेरा बदला, रिवेंज मिल गया, पूरा हो गया। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन but when the immortal gods take a hand in the matter it is pardonable to observe the result with complacency. Today she weighs 136 kilograms. Now end of the story, ऑथर हमें बताता है कि ऑथर जो है वो रिवेंज लेने में बिलीव नहीं करता है, वो बदला लेने में बिलीव नहीं करता, बट एंड ऑफ द वो कहता है कि जो गॉड है, जो इमॉर्टल गॉड है, जो अमर है भगवान, उसने मेरा बदला लिया। उसने बदला कैसे लिया? उसने 20 years बाद जो लेडी है उसने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया, गेन कर लिया है, ऑलमोस्ट 136 kilograms
उसने वेट गेन कर लिया है 130। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा फैटी हो गई है, हैवी हो गई है। एंड ऑथर इसको अपना एक तरीके से रिवेंज समझता है कि उसने उसके पूरे फ्रैंक्स ख़त्म करवा देते एक डिनर में, ये कह के कि मैं कुछ भी नहीं खाती, और बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर कर दी थी। और उस समय ऑथर ने कुछ रिवेंज नहीं लिया था, बिकॉज वो रिवेंज लेने में बिलीव नहीं करता। आज 20 ईयर्स बाद उसका रिवेंज भगवान ने लिया, उसका वेट डबल से ट्रिपल हो गया है। ओके, सो होप यू फाइंड द लेसन यूजफुल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।